مہمانان گرامی، ریسکیو آفیسرز، ریسکیورز، اور خاص طور کے اوپر جو مجھے خوشی ہے کہ آج جو پورے پاکستان سے یہاں پر آئے جو والنٹیئرز ہیں اور جو میرے میڈیا کے یہاں پر دوست احباب ہیں، آپ سب لوگوں کو السلام علیکم۔ میرے لیے یہ آج کا جو موقع ہے یہ بڑا قابل فخر ہے، باعث فخر ہے، اور چونکہ ہم نے ریسکیو 1122 کو اپنی آنکھوں سے جو ہے وہ بڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے، جیسے جیسے ہم بھی بڑے ہو رہے تھے اس کے ساتھ ساتھ 1122 بھی جو ہے وہ بڑی ہوتی جا رہی تھی، اور ایک منظم ادارے کے طور کے اوپر جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ اور بنیادی طور کے اوپر آج ہم یہ بات فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم کسی ایسے ادارے کے اوپر جو ہے وہ سب فخر کر سکتے ہیں اور جس کی پہچان جو ہے وہ ہر گھر کے اندر جو ہے وہ موجود ہے، اور جس نے ہر پاکستانی کے دل کے اندر اپنا گھر کیا ہے، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ ریسکیو 1122 کی سروس ہے، اور یہ بہت بڑا آپ کے لیے اعزاز ہے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو ہمارے باقی ادارے بھی ہیں، جو سروس اورینٹڈ ادارے ہیں، جن کا کام پبلک کو سروس فراہم کرنا ہے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ 1122 کا ادارہ سویلین سائڈ کے اوپر ان کے لیے بھی ایک مشعل راہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اگر آپ عوام کی خدمت کرتے ہیں، کوئی ادارہ عوام کی خدمت کرتا ہے، تو اس ادارے کے اندر جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان لوگوں کو بھی لوگ عزت دیتے ہیں، اس ادارے کو بھی جو ہے وہ قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ کروڑوں، جس طرح بتایا 1 کروڑ سے زائد لوگوں کو جو ہے وہ 1122 جو ہے وہ ریسکیو کر سکی ہے، اور کوئی بھی حالات ہوں، کوئی بھی ایمرجنسی ہو، طوفان ہو، سیلاب ہو، زلزلہ ہو، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، آگ لگ جائے، بم بلاسٹ ہو، لیکن اس میں جو ہمارے یہ جو شیر جوان ریسکیور ہیں، یہ کبھی بھی جو ہے وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، بلکہ یہ دوسروں کی جان بچانے کے لیے اپنی جان کو بھی جو ہے وہ داؤ پہ لگاتے۔ تو میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور جو آپ نے پروگرام ڈاکٹر صاحب شروع کیا RCC کے نام سے، ریسکیو کیڈٹ کارپس کے نام سے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج ہماری وقت کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی کمیونٹی کو بھی جو ہے وہ ساتھ انوالو کریں۔ اور سب سے بڑی جو چیز ہوتی ہے وہ کسی بھی قوم کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک رسپانسیبل قوم ہوتی ہے، وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہیں، وہ اپنی سیوک رسپانسبلٹی کو سمجھتے ہیں، وہ اپنی سوشل رسپانسبلٹی کو سمجھتے ہیں۔ اور یہ آج کا آپ کا بڑا زبردست انیشیٹو ہے کہ آپ نے کمیونٹی پارٹیسپیشن کو بھی جو ہے وہ انکریج کرتے ہیں۔ اور مجھے خوشی ہوئی کہ یہاں پر جب میں نے مختلف اضلاع سے آئے، پاکستان کے دور دراز علاقوں سے آئے، مختلف اداروں سے آئے، جب میں نے والنٹیئرز کو دیکھا، ان کے جذبوں کو دیکھا، کہاں سے یہ کمپیٹ کر کے اپنے ڈسٹرکٹ سے یہاں تک پہنچے آپ کی اکیڈمی کی سطح کے اوپر، اور آج ہم جو ہے وہ انٹرنیشنل جو ڈے آف والنٹیئرز ہے اس موقع کے اوپر ان کو جو ہے وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، تو میں آپ کو بھی جو ہے وہ شاباش دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے حوصلے اور جذبے کو بھی میں داد دینا چاہتا ہوں خاص طور کے اوپر۔ اور یہ بڑا اہم ہے ہمارے لیے کہ ہم جو ہماری ایک قوم بن کے ہم ہر قسم کے حالات کے لیے جو ہے وہ تیار رہیں، ہر قسم کے حالات کے لیے جو ہے وہ ہم رسپانس دینے کے لیے جو ہے وہ تیار رہیں۔ اور جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر کیا کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں آپ کے علاقوں کی سطح کے اوپر، جس میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم خود وہاں پر بطور معاشرے کے طور کے اوپر اپنی ذمہ داری لے لیں تو بہت ساری چیزوں کے اوپر ہم جو ہے وہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں۔ اور ایک عظیم قوم بننے کے لیے جو ہے وہ یہی میں سمجھتا ہوں کہ اصول ایسا ہے کہ ہم سب اپنے اپنے حصے کا جو ہے وہ شمع روشن کریں، اپنے اپنے حصے کی جو ہے وہ دیا جو ہے وہ ہم نے جلانا ہے، اور پازیٹیو کردار ادا کرنا ہے، مثبت کردار ادا کرنا ہے پاکستان کی تعمیر و ترقی کے اندر۔ اور ابھی اسی طریقے سے جو ریسکیو 1122 کی جو کیپیسٹی بلڈنگ ہے، جس طرح بات ہو رہی تھی، ابھی 28 کے مختلف اضلاع کے اندر جو ہے وہ موٹر سائیکل سروس بھی جو ہے پنجاب حکومت جو ہے وہ شروع کرنے جا رہی ہے، اور اس کا میں کریڈٹ
जो है वो चीफ मिनिस्टर पंजाब उस्मान बुज़दार को और जो आपके डीजी हैं डॉक्टर रिजवान नसीर साहब को भी देना चाहता हूँ कि अभी ये हेलीकॉप्टर सर्विस का भी जो पहली हेलीकॉप्टर इमरजेंसी सर्विस जो है वो 1122 जो है वो शुरू करनी जा रहा है, जिसकी अप्रूवल बाकायदा तौर के ऊपर जो है वो वज़ीर आला साहब जो है वो दे चुके हैं। और मैं समझता हूँ कि वो भी आपकी एक स्क्वाड के अंदर, एक कैपेसिटी बिल्डिंग के अंदर एक अहम जो है वो इजाफा होने जा रहा है। और हुकूमत हर तरह के वसाइल जो है वो आपको फराहम करेगी, क्योंकि मैं समझता हूँ कि लोगों की जान बचाना मैं समझता हूँ कि हुकूमत की जो है वो अवलीन तरजीह है, और उस तरजीह के ऊपर जो है वो किसी तौर के ऊपर भी किसी किस्म का भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। और मुझे इस चीज़ की ख़ास खुशी है कि जब आप लोग भी अपना 1122 का यूनिफॉर्म जब पहनते होंगे तो अब मैं समझता हूँ कि हम इस सतह के ऊपर पहुँच गए हैं कि हमारे वालिदैन जो हमारी माएँ हैं वो फ़ख्र से अपने बच्चों को जो है वो रेस्क्यूअर बनाती हैं, उनको 1122 की सर्विस का हिस्सा बनने की जो है वो तरगीब देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा आपके लिए जो है वो एजाज़ है, किसी एजाज़ से जो है वो कम बात नहीं है ये आपके लिए। और आखिर में मैं आपको, क्योंकि ये सारे हमारे जो है वो जवान हैं, तो मैं आपको सिर्फ अल्लामा इकबाल का वो शेर आपको बताना चाहता हूँ कि उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, मंजिल नजर आती है उनको अपनी आसमानों में। तो हमने जो है वो स्काई इज द लिमिट, पाकिस्तान को हमने आगे लेके जाना है, पाकिस्तान के लिए हमने हर काम आगे करके लेके जाना है। तो मेरे साथ मिलके जवाब दें, पाकिस्तान, पाकिस्तान, रेस्क्यूअर। थैंक यू। वज़ीर ममलिकत बलाए तरातुन नशरियात फ़ारूक हबीब लाहौर में रेस्क्यू हेडक्वार्टर की तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि रेस्क्यू 1122 को तरक्की करते हमने देखा, उसे बनते हुए हमने देखा। 1122 एक मुनज़्ज़म इदारे के तौर पर सामने आई। हम रेस्क्यू 1122 की कामयाबी पर फख्र कर सकते हैं। रेस्क्यू 1122 एक मुनज़्ज़म तरीन इदारा है। PTV न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही। कैसे मुमकिन है कि हमारी करेंसी डिजिटलाइज ना हो? पाकिस्तान के अंदर सियासी मूवमेंट से भी ज्यादा मूवमेंट की जो जरूरत थी वो थी डिजिटाइजेशन की जरूरत। फ्रॉड को कैसे रोका जा सकेगा? डबल शाह तो हमेशा दुनिया में रहेंगे और अब डिजिटल डबल शाह आ गए हैं। इंटरनेट के थ्रू कोई भी ट्रांजैक्शन ऐसी नहीं है जो ट्रेस ना हो सके। प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है? बैंक्स को, हुकूमत को, SECP को, स्टेट बैंक को। मुल्क में क्रिप्टो की बात ही होने लग गई है और स्टेट बैंक वाले सुनने लग गए हैं, यही बहुत बड़ी बात है। वो कह सकते हैं भाई हम नहीं सुनते वकार ज़का को यार। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि डिजिटाइज और डिजिटल पाकिस्तान की तरफ तेजी से बढ़ा जाए। पाकिस्तानी अवाम खर्चा करना चाहती है। अगर आपके किया जा चुका है, दो जो मरकजी उनके मुल्ज़मान हैं जो उसका वीडियो के ऊपर भी आकर तस्लीम कर रहे हैं, उनको भी पुलिस ने जो है वो रात गए उनको भी गिरफ्तार किया और इनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई भी होगी और इसको एक मिसाल भी बनाया जाएगा ताकि आइंदा जो है वो इस किस्म का कोई जो है वो वाक़या ना हो सके। और मैं समझता हूँ कि इस हवाले से वज़ीर आज़म साहब ने भी ख़ास हदायत जारी की हैं और पूरी पंजाब हुकूमत भी इस हवाले से जो है वो मुतहरक है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जैसे ये वाक़या हुआ, ये वाक़या जो है वो इस चीज़ का मुंह बोलता सबूत था कि जिस तरह से फेलियर एक नज़र आया हमें पिछले दिनों में गवर्नमेंट का, जब TLP के एहतजाज जारी होते रहे उसके बाद आपके ही लीडरान जो हैं वो TLP के ऑफिस के अंदर जाते रहे। पहले पुलिस वालों ने कुर्बानियाँ दी, बाद में एजाज चौधरी साहब जो है वो तशरीफ़ लेके गए TLP के हेड ऑफिस के अंदर और जाके उनसे हाथों में हाथ मिलाते रहे। वहाँ पर ना सिर्फ पुलिस फोर्स जो है वो डिमोरलाइज हुई बल्कि उसके साथ ही साथ इन अनासर को मजीद जो है वो वहाँ पर एक मोटिवेशन भी मिली। आप क्या समझते हैं कि इसको मेन स्ट्रीम करने के अंदर ज़्यादा कसूर PTI की गवर्नमेंट का? नहीं, देखें, किसी जो आपका सवाल है, देखें ये इतना सीधा मामला नहीं है। थोड़ा इसको समझने की हमें ज़रूरत है कि जो इसको मैं सियालकोट वाक़े से इसको मैं अलहदा करके बात करना चाहता हूँ। हमारे लोगों के बहुत सारा जो ये बात है उसके साथ जज्बात जुड़े हुए हैं और उन जज्बात को बहुत सारे लोग जो है फिर अपने मतलब में और अपना रंग देना चाहते हैं। तो रियासत पहले ही इस हवाले से बड़ी वाज़ेह है और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जब रियासत किसी चीज़ की ज़िम्मेदारी लेती है और ख़ास तौर के ऊपर जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हुर्मत का मामला है
उसके ऊपर रियासत दुनिया में मुकदमा अपना लड़ रही है। तो फिर यही बात है कि हम अपने माशरे को भी, अपने शहरियों को भी ये बात की तलकीन करते हैं कि कानून की हाकमियत को जो है वो तस्लीम करें और रियासत को उसका काम करने दें, कानून उसके ऊपर हाथ में ना लें। यही वजह है कि उसके ऊपर जो है वो सख्त से सख्त एक्शन होगा। जहाँ तक रही बात आपने जिक्र किया, तो जो वो उस वक्त सिचुएशन थी, एक सिचुएशन थी कि आप ब्लड बात करें और आप कहें कि हमने ताकत के ज़रिए जो है वो उन लोगों को कुचल दिया है, या आप बातचीत करके वो लोग जो राह रास्त से हटे हों उनको आप रियासत के आइन और कानून को तस्लीम करने की तरफ राग़िब करें। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने उस वक्त जो बेहतरीन ऑप्शन था उसको अडॉप्ट किया, जिसमें हम खून रेजी से जो है वो बचना चाहते थे। और जैसे मैंने आपको कहा कि ये एक अब पूरा एक माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है, और ये कोई एक दिन में ऐसी चीज़ नहीं हो जाती, कोई एक हुकूमत भी इसकी जो है वो ज़िम्मेदार नहीं हो सकती। तो हमें जो है वो मिल के इसके ऊपर जो है वो काम करना है, और हमें किसी की ना हक जान लेने की किसी को कोई इजाज़त नहीं है। इस हवाले से जो भी अभी इसके ऊपर ताज़ा तरीन जो है वो अपडेट्स होंगी, ज़ाहिरी बात है वो तो तमाम उसमें जो कानूनी तौर के ऊपर जो प्रोसीजर्स हैं, प्रोसेस हैं, वो उसके ऊपर जो है वो फॉलो करेंगे। और इसको जो हमारी पंजाब हुकूमत है और आईजी पंजाब हैं वो इस मामले को देख रहे हैं, और इस हवाले से जो है वो तफसीलात भी जो आगे ले रहे हैं वो आपके सामने रखेंगे। सर ये बताइएगा कि स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट है गैर मुल्की इंस्टीट्यूट के लिए, तो क्या इंसाफ के साथ उनके कोई अलगात तैनात थे? पुलिस को पता था? देखें वो तो इनके पास जो है वो किस किस अजला में कहाँ कौन कौन गैर मुल्की जो है वो काम कर रहे हैं, उस हवाले से जो है वो इंतज़ामिया के पास उनकी लिस्टें भी मौजूद होती हैं। और उसके ऊपर जब ये तमाम, मैंने आपको कहा, जो एक मुकम्मल इंक्वायरी हम करवा रहे हैं उसके अंदर इन तमाम चीज़ों का जो है वो अहाता किया जाएगा और वो इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो सामने रखी जाएगी। बहुत शुक्रिया।